Welcome young learners to the first unit of microeconomics, that is introduction. हमने अपने previous videos में कुछ basic concepts को किया है and we have done the concept of central problems of an economy. Today we will be moving towards the production possibility curve. But before we will start with the production possibility curve, we will do one smaller concept or a basic concept that will be helpful for you not only in this chapter but in the other chapters also. So that concept is assumptions and exceptions. आप बार बार माइक्रो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस और एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी अजम्पशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं. सो लेट अस डू द मीनिंग ऑफ अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस. सी वी नो दैट ईच इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर इकोनॉमी. हमारे वर्ल्ड में बहुत सी इकोनॉमीज़ हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी इकोनॉमीज़ एक जैसी हों. कुछ डेवलप्ड है, कुछ अंडर डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग नेशंस है. हर इकोनॉमी का अलग अलग स्ट्रक्चर है. बिकॉज of the structure and size of the economy there are the differences in the economy. But जब हम economics के concepts करते हैं, in order to fit all those concepts on each economy, हर economy में उन concepts को fit करने के लिए हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं. That thing that we assume are known as assumptions. So assumptions are nothing but in order to fit the concept in that particular time point, उस particular point of time पर उस particular economy में concept को fit करने के लिए हम कुछ चीज़ों को assume कर लेते हैं and those are known as assumptions. उन्हें हम assumptions कहते हैं. फिर आपके पास concept आएगा exceptions का. Exceptions होती हैं कि हमने सारी assumptions को मान लिया. हमने कहा x इज़ दी assumption, y इज़ दी assumption, जो भी हमने assumptions रखी हमने सारी assumptions को मान लिया. लेकिन कुछ ऐसे concepts होते हैं जो assumptions को मानने के बावजूद fit नहीं होते. That means everything has been assumed as per the law, but then too certain factors are there which are exceptions. That means assumptions को मानने के बावजूद जब law कुछ चीज़ों पर fit नहीं होता, that is called the exception. So what is the difference between assumptions and exceptions? The assumptions, in order to fit the law in at that particular point of time in the economy, certain things are assumed. कुछ चीज़ों को मान लिया जाता है. On the other hand, the exceptions का मतलब है कि assumptions को मानने के बावजूद जब कुछ चीज़ें या कुछ factors हमारी उस law पर applicable नहीं होते, that means certain factors are not applicable to that law, that becomes the exceptions. उसे हम क्या कहते हैं? exceptions कहते हैं. तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे तो हम बहुत से लॉज को पढ़ेंगे. तो उन लॉज में इन चीज़ों को अपने कॉन्सेप्ट को फिट करने के लिए हम अजम्पशन और एक्सेप्शंस दोनों कॉन्सेप्ट्स को करेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. So now the next concept is the production possibility. Again a very important concept. The production possibility shows the various combinations of two commodities. दो commodities के वो सभी combinations that could be produced with the given set of resources and technology. यानी कि जो resources और technology हैं उनके साथ जितना भी production दो commodities का किया जा सकता है, and when the resources are fully and efficiently utilized. हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी resources है वो पूरी तरीके से utilized है. So before we will again do the concept of production possibility, we will do certain assumptions here. कुछ assumptions करते हैं. The first assumption is only two commodities are produced. केवल दो ही कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है. द सेकेंड इज रिसोर्सेज आर कांस्टेंट. रिसोर्सेज गिवन है और कांस्टेंट है. सिमिलरली टेक्निक इज गिवन एंड कांस्टेंट. देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है एंड रिसोर्सेज में भी कोई चेंज नहीं हुआ है. देन वी हैव द resources are
not equally efficient, resources equally efficient नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे तब उसके थ्रू करेंगे कि रिसोर्सेज जो है इक्वली एफिशिएंट नहीं है। फिलहाल इतना कि हमारे पास 4 अजम्पशंस हैं कि केवल 2 ही कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, रिसोर्सेज कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। साथ साथ द रिसोर्सेज आर fully and efficiently employed, that is कि जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। दैट मीन्स नन ऑफ द रिसोर्स इज वेस्टेड, यानी कि सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये शो करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको फुल्ली यूटिलाइज करके 2 कमोडिटीज़ के अलग अलग कितने कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस किया जा सकता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स के पीछे जो रीजंस हैं, दीज रीजंस आर, हमें जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करेंगे तो हमें उन्हीं रीजंस को याद रखना है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है एंड कैन बी पुट इनटू ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि रिसोर्सेज के जो यूज है वो एक से ज़्यादा है। बेस्ड ऑन दैट वी हैव वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 कमोडिटीज़, यानी कि क्योंकि रिसोर्सेज को एक से ज़्यादा यूज़ में रखा जा सकता है। सपोजिंगली मुझे एक्स और वाई 2 कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो इसका मतलब है रिसोर्सेज कुड बी पुट टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, the same resource could be put toward the production of y, यानी कि उस रिसोर्स को आप x के प्रोडक्शन में भी लगा सकते हैं, उसी रिसोर्स को y के प्रोडक्शन में भी लगा सकते हैं। सो दैट इज नोन एज द प्रोडक्शन, द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स। नाउ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शोज दैट व्हाट आर द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज़, 2 कमोडिटीज़ के वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम अपने गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। सी, जब भी आपके पास वर्ड आएगा स्केड्यूल, जब भी आपके पास कौन सा वर्ड आएगा स्केड्यूल, तो आपको सिर्फ एक चीज लिखनी है, अ टैबुलर प्रेजेंटेशन, अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ, अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ, और उसके बाद कॉन्सेप्ट को ऐसे का ऐसा लिखना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, तो अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज, यानी कि अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ के बाद वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज and technology and when the resources are fully and efficiently utilized. That means कि schedule आपके concept को टैबुलर फॉर्म में शो करता है। टैबुलर का मतलब क्या है कि हम उसको टेबल के थ्रू शो करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को, जैसे हम अब यहाँ करेंगे। सो बेसिकली वेन एवर वी टॉक अबाउट द स्केड्यूल इट इज़ नथिंग बट द टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं उसको टेबल के थ्रू शो करना। सो अ टैबुलर प्रेजेंटेशन यानी कि जब हम टेबल के थ्रू शो करते हैं अलग अलग उन कॉम्बिनेशंस को जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं with the given set of resources. For an example, supposingly हम यहाँ एक example लेते हैं, example ले रहे हैं हम यहाँ पर, supposingly an economy can produce 2 commodities, economy में 2 commodities का production किया जा सकता है। These commodities are butter and pen. Now the combinations that the economy can produce, कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज भी कह सकते हैं। सो द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए, हम मानते हैं कि सारी का जितना भी रिसोर्स था वो पेन के प्रोडक्शन में लगा दिया गया एंड द मैक्सिमम यूनिट्स दैट कुड बी प्रोड्यूस फॉर पेन इज 10। इसका मतलब है व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ पेन, 0 units of butter had been produced. Now in the combination B, supposingly 1 unit of
बटर हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, जब बटर की एक यूनिट को प्रोड्यूस किया गया तो सीधी सी बात है पेन की कुछ यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इसीलिए एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे की कुछ यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। रीजन, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हेंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी द प्रोडक्शन ऑफ द अदर हैज टू बी डिक्रीज्ड। तो आगे चलते हैं। अब बटर की 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया तो इसका मतलब है पेन की और यूनिट्स को कम करना पड़ेगा बिकॉज द रिसोर्सेज हैड बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ बटर। नाउ in the combination D, supposingly 3 units of butter had been produced, तो इसका मतलब है now we have to lose more units of pen की और units को कम करना पड़ेगा। And supposingly in the E combination 4 units of butter had been produced, all the resources had been employed towards the production of butter, सारे के सारे resources बटर में कंज्यूम हो गए तो पेन की कितनी यूनिट्स होंगी? 0 यूनिट्स होंगी। तो इट शोज यू द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि 2 कमोडिटीज के वो सभी कॉम्बिनेशन शो करता है जो गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जब कॉम्बिनेशन ए में सारे रिसोर्सेज को पेन में लगा दिया गया तो बटर की 0 यूनिट्स है। सिमिलरली कॉम्बिनेशन ई में जब सारे रिसोर्सेज को बटर में लगा दिया गया तो पेन की यूनिट्स 0 हैं। और बीच में हम देख रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बटर द प्रोडक्शन ऑफ पेन हैज़ टू बी डिक्रीज्ड, पेन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और यदि हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन कम करना होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So the next topic under the production possibility is production possibility curve। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसा अभी हमने स्केड्यूल के लिए सीखा कि हमें स्केड्यूल में सिर्फ एक वर्ड लिखना है, अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ, एंड देन वी हैव टू जस्ट राइट द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। हियर ऑल्सो व्हेनेवर यू हैव द वर्ड कर्व it is written a graphical presentation of और उसके बाद आप कॉन्सेप्ट का एज इट इज मीनिंग लिख देंगे। जैसे हम यहां अब इसे कंप्लीट करेंगे, अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 commodities that could be produced with given set of resources and technology when all the resources are fully utilized। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो हम उस कॉन्सेप्ट को ग्राफ के थ्रू शो कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम उस कॉन्सेप्ट को डायग्राम के थ्रू शो कर रहे हैं। तो जैसा हमने अभी किया था कि यदि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल को ड्रॉ करते हैं, हम फिर से उसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल की तरफ चलते हैं। हमने 2 कमोडिटीज़ को लिया था, बटर और पेन। There were the combinations, different combinations were there. Now we were having the different set of combinations. These were in combination A 0 units of butter and 10 units of pen. In combination B 1 unit of butter and 9 units of pen. In combination C 2 units of butter and 7 units of pen. In combination D 3 units of butter and 4 units of pen. Combination E 4 units of butter where entire resources had been employed towards the butter and hence the production of pen is 0. Now when we will plot these
given set of combinations on the graph, this will be known as the curve. So let us start plotting this. Plot करने से पहले एक चीज़ फिर से जो हम assume करके चलेंगे वो ये कि जो कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसे हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, जबकि जिसका कम हो रहा है उसको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं. सो द प्लॉटिंग ऑफ दैट कमोडिटी हैज़ टू बी डन, द प्रोडक्शन ऑफ विच इज इंक्रीज्ड, जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है दैट कमोडिटी विल बी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, वाइल द प्रोडक्शन ऑफ द विच कमोडिटी इज डिक्रीज्ड दैट विल बी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस. तो इसका मतलब है हम पेन को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे जबकि बटर को x एक्सिस पर प्लॉट करेंगे. सो here we will on y axis we have two axes here now. So units of pen, here we will be taking the units of pen, here we will be taking the units of butter. Now if you see, when 10 units of pen has been produced, 0 units of butter are there. So 10 of pen and 0 of butter. Then when 1 unit of butter is being produced, 9 units of pen, 1 unit of butter के corresponding 9 units of pen. 9 कहाँ यहाँ पर होगा. Then C combination में, the combination C shows that in case of 2 units of butter, 7 units of 2 units of butter and 7 units of pen. Then in D combination, 3 units of butter and 4 units of pen, 3 units of butter and 4 units of pen, 3 units of butter and 4 units of pen. And in this combination, 4 units of butter and 0 units of pen. जब आप इन सभी को मिलाएंगे, जब ऑल दीज आर बीन ज्वाइन, सभी को ज्वाइन करने पर यू विल बी हैविंग अ दिस काइंड ऑफ कर्व. आपको जो कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. दिस काइंड ऑफ कर्व यू विल बी हैविंग. एंड वी नो, मैंने आपको अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि इस तरीके के कर्व की शेप को हम concave shaped curve कहते हैं. So such kind of curve will be known as concave shaped curve. ये जो कर्व है ये आपके पास आता है concave shaped curve, और जितने भी यहाँ पर हमारे पास plotted numbers हैं वो सारे आपको अलग अलग combination show करते हैं. These plotted points will show you the different combination. 10 और 0 का जब combination है it is combination A. 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है इट शोज द कॉम्बिनेशन बी. 2 और 7 का कॉम्बिनेशन शोज यू द कॉम्बिनेशन सी. 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आपको डी शो करता है. 0 और 4 और 0 का कॉम्बिनेशन आपको ई शो करता है. तो these are the various combinations that had been plotted on this. अलग अलग पॉइंट अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो करते हैं. A combination shows you 0 10, B combination shows you 1 9, C combination shows you 2 7, D combination shows you 3 4 and E combination shows you 0 4. तो ये वो सभी कॉम्बिनेशन है जिन्हें आप गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड व्हेन वी विल सी द कर्व विल बी अ कॉन्केव शेप्ड कर्व. कर्व की जो शेप होगी वो होगी कॉन्केव शेप. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नाउ the production one question that is related to production possibility, at times it is given to you in 1 mark, at times it is given to you in 3 marks with various different situations. We will take a production possibility curve first. सबसे पहले हम एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेंगे. वी नो इट इज़ अ कॉन्केव शेप्ड कर्व. अब हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं मैंने कुछ पॉइंट्स को प्लॉट किया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर. सपोजिंगली दीज पॉइंट्स आर A, B, C, D. Now I have taken one more point inside the PPC. This is point G, and one point I take outside the PPC, that is point K. So now I have 3 different situations. Some points are on PPC,
one point is inside PPC and one point is outside PPC. So what do these points indicate? ये क्या indicate करते हैं? तो सबसे पहले हम लेते हैं कि कोई भी point जब PPC पर है तो वो क्या indicate करता है? Any point on PPC, any point on PPC क्या indicate करता है? Indicates full utilization of resources. यानी कि ये शो करता है कि इकोनॉमी, सपोजिंगली हम पॉइंट ए की बात करें तो इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करके कॉम्बिनेशन ए पर x की x1 यूनिट्स और y की y1 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते। तो इट इंडिकेट्स द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट शोज यू दैट कॉम्बिनेशन shows that combination of two commodities, combination of two commodities that could be produced with efficient utilization of रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हुए हम टू कमोडिटीज़ के कौन से कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ए पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं y1 और x1 को। बी की बात करें तो बी पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं x2 और y2 को, लेकिन यहाँ पर भी द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं। सो एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। नाउ वी विल डू व्हाट डज अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी इंडिकेट। यदि कोई पॉइंट पीपीसी के अंदर है तो वो क्या इंडिकेट करता है। सो लेट अस डू अलॉन्ग विद दिस ओनली। Supposingly I take one more PPC here, एक और PPC मैंने लिया, राइट। अब मैंने एक पॉइंट इसके अंदर की साइड लिया, हमने पहले लिया था पॉइंट G, तो सपोजिंगली कंटिन्यूइंग विद दिस पॉइंट G। अब पॉइंट G क्या शो करता है? पॉइंट G ये शो करता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड नहीं है, क्योंकि पीपीसी ये शो करता है कि मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन किया जा सकता है। इट इम्प्लाइज कि यदि कोई पॉइंट इनसाइड पीपीसी है, अब ये किस कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है? सपोजिंगली दिस इज द कॉम्बिनेशन x और y1, ये इस कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि x1 और y1 का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी ने अपना फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अटेन नहीं किया है। द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज so any point inside PPC, any point inside PPC क्या शो करता है? Any point inside PPC shows that the resources are not fully utilized, resources का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, the economy still can produce। अब इकोनॉमी क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती है वो अब हमें यहाँ से देखना है। सपोजिंगली हम यहाँ से देखेंगे कि अब इकोनॉमी क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती है जब वो पॉइंट G पर है। सबसे पहला हम ले रहे हैं पॉइंट G यहाँ पर, और इस कॉम्बिनेशन पर, पॉइंट G वाले कॉम्बिनेशन पर इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन है x1 और y1 है, जो हमने वहाँ पर लिया है, उसी को कंटिन्यू करके अब हम देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। अब इकोनॉमी क्या क्या कर सकती है? द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट एन इकोनॉमी कैन डू कि वो y का प्रोडक्शन तो y1 ही रखे, और पीपीसी तक पहुंचने के लिए हमने किया कि P
पीपीसी कहता है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो ऐसे केसेस में y का प्रोडक्शन तो y1 ही रखा, लेकिन x का प्रोडक्शन बढ़ाकर x2 कर दिया। सो द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट combination that the possibility that an economy can do is to increase the production of x, remaining the production of y constant. So the economy can do, or the economy can still produce, पहला more of x keeping units of y constant, यानी कि y की उतनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस करे और x की यूनिट्स को बढ़ा दे। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है जो इकोनॉमी में की जा सकती है वो ये कि अब हम अगेन एक और पॉइंट पीपीसी बनाएंगे विद अ पॉइंट G। पॉइंट G है जहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है अगेन किस किस का हो रहा है, x1 और y1 का। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि x का प्रोडक्शन तो उतना ही रखा जाए लेकिन y का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। सो द प्रोडक्शन ऑफ x रिमेन्स कांस्टेंट बट द प्रोडक्शन ऑफ y इज इंक्रीज्ड टू y2। y का प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया, y2। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज मोर ऑफ y कीपिंग यूनिट्स ऑफ x कांस्टेंट। आपने देखा यहां हमने y को कांस्टेंट रखा, x को बढ़ाया, यहां हमने x को कांस्टेंट रखा, y को बढ़ाया, सो एज टू टच पीपीसी, ताकि पीपीसी को टच किया जा सके। यहां हमने इधर किया है पीपीसी को टच, यहां हमने यहां पर किया। एनी पॉइंट ऑन पीपीसी शोज द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो इट डजंट मैटर वेदर इट टचेस हियर और हियर, any point on the PPC shows the fuller utilization of resources. So when the economy is increasing the units of x keeping y constant but reaching to PPC, it shows the fuller utilization of resources. When the economy is increasing the production of y keeping x constant but reaching to PPC, then also it shows the fuller utilization of resources. तो पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये ना। सो एक और पॉसिबिलिटी है जो ये है कि सपोजिंगली अगेन वी टेक द थर्ड ऑप्शन वेयर द पीपीसी इज दिस, ये आपके पास पीपीसी है, थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं जहां पर सपोजिंगली द पॉइंट G इज देयर वेयर x1 एंड y1 इज द कॉम्बिनेशन। अब ऐसे केस में सपोजिंगली आप क्या कह सकते हैं कि वो y की भी कुछ यूनिट्स को बढ़ा सकते हैं और x की भी कुछ यूनिट्स को बढ़ा सकते हैं, सो एज टू रीच टू दी पीपीसी। सो वन मोर ऑप्शन इज मोर ऑफ बोथ x एंड y कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि दोनों की यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, x की भी ज़्यादा और y की भी ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देयर आर सेवरल ऑप्शंस विद एन इकोनॉमी इफ इट इज़ ऑपरेटिंग इनसाइड पीपीसी। यदि ये पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रही है तो उसके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं सो एज टू रीच और सो एज टू टच दी पीपीसी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ the last one is when any point is outside PPC। ये आपका PPC है, हमने बात किया any point on PPC shows the various combinations of two commodities that could be produced with the given set of resources when the resources are fully utilized। कोई पॉइंट अंदर है तो वो ये शो करता है x की ज़्यादा कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हो या y की या दोनों की। अब हमारे पास आता है कि कोई पॉइंट बाहर है किसके, पीपीसी के। व्हाट डज इट शो, ये शो करता है सपोजिंगली, पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आ रहा है। सपोजिंगली वी टेक x4 y1, यानी कि ये शो करता है कि y की तो इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और x की इतनी। क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं? नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमम प्रोडक्शन शो करते हैं एनी पॉइंट ऑन पीपीसी। इसका मतलब है एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीसी, पीपीसी के बाहर यदि कोई भी पॉइंट है तो वो शो करता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसी वजह से जो ये कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन मांग रहे हैं हम, x4 प्लस y1 का, ये कॉम्बिनेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो एट अ स्ट्रेच कहाँ तक है? सपोजिंगली हम मान लेते हैं कि हम x3 तक का प्रोडक्शन कर सकते हैं, x4 का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज व्हेन आर एम्प्लॉयड द मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ x कुड बी प्रोड्यूस्ड वाज x3। जब सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर लिया गया तो जो मैक्सिमम यूनिट्स x की प्रोड्यूस की जा सकती थी वो कितनी थी? x3। सो दिस शोज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन सिंस all the resources would have been employed towards when the resources were employed towards the production of x, the maximum units of x could be produced up to x3. So K shows an unattainable combination since the economy does not have that much resources to produce up to point K, क्योंकि economy के पास इतने resources नहीं हैं कि वो point K तक produce कर सके। आप इसका एक screenshot ले सकते हैं। So children, I hope so that you must have understood the concept of PPC। अब हम मिलेंगे next video में। Till then, thank you very much. Have a good day.